What's happening, people? Welcome back to another episode of the Mini Adult Troubles. Today is the 30th episode of the podcast, and I have with me someone who is an analytical genius for me. Give him your videos, and ये आपकी कुंडली निकाल के आपको दे देंगे. Today I have with me Vedant Kaushik, also known as Vedant Rusti. He's also a Delhi University graduate. Rusty. Vedant Rusty. 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 He's also a Delhi University graduate, just like I am. 2017, if I'm not wrong. And मैं बस अभी पिछले महीने निकला हूँ. So welcome to the show. Sorry for being super notorious with all the emails and WhatsApp messages. Like I was telling you, if you had not been that pestering, I would not be sitting here. I mean, right. From my perspective, it shows a lot of zest कि हाँ ठीक है करना है तो करना है. Yep. मैं ये सेम चीज कर रहा हूँ दो चार लोगों के साथ और जो मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा है तो I know what it feels like. मेरे को पता है कि शिद्दत से करो तो हो जाता है काम. Correct. So first question is like we all know that the type of videos you make. So how do you personally see yourself as a YouTuber? Are you do you see yourself as a YouTuber critic, or do you think like to be very honest, I don't consider myself a YouTuber at all, yaar. Okay. I mean, I know कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, चैनल पे वेरिफिकेशन टिक भी आ गया है, but still YouTube for me is not something that I'm doing with the intent of making it on YouTube. YouTube is something that I do which is like a top of the funnel thing for me. कि यहाँ से मेरे को एक major audience मिलेगा, जिसको then I'll funnel down into something that I would like to do dedicatedly. Like my main purpose in life is to help startups with their content and marketing. Something I've been doing for the past 3-4 years. हाँ. तो उसके लिए YouTube मेरे को बहुत help कर देता है because it enables me, in fact not just YouTube, my Instagram, my Twitter, all of them help me to connect with people who have like potentially great ideas, and I have to just work with them. But if in the context of my YouTube channel, I think I answered this yesterday in one of my Instagram Q&As, and वहाँ किसी ने बोला था how do you define your channel? And I thought on it for a bit and I came up with what did I come up with? A social critique and a cultural curator. Yeah, a social critique and a cultural curator. ये bio में बदलने वाला हूँ अपने channel का. So essentially, I view my videos, which are basically on things that happen in the pop culture world, Correct. Movies, TV shows. कोई trending topic होता है तो उसमें मैं अपना opinion दे देता हूँ. So that is sort of a critique and a critical opinion that I provide from my own perspective, because that is something that I think I can do better than a lot of other people. And बाकी कल्चरल क्रिएटर का मतलब है कि जो मैं कल्चर देखता हूँ, like the movies that I watch, the books that I read, they are unique to me. I mean, there might be things that a lot of people have watched as well, but I have also seen them. And whosoever comes on the channel will find कि मैं किस perspective से चीजें consume करता हूँ. So that is what I would like to place it as. At least the main channel. बाकी channel पे तो कुछ भी चल रहा है अभी. एक podcast है, gaming अलग होता है, productivity अलग है. तो I just love making content. Clips भी है. Gist of it. Yeah. वो clips है. वो तो viral होने के लिए है. कभी ना कभी कोई ना कोई clip viral हो जाएगी. बस. YouTube revenue चाहिए यार. AdSense से वैसे पैसा एक चैनल में नहीं आता. 4-5 चैनल चाहिए होता है उसके लिए. I know. मेरा भी monetize हुआ है 2 महीने पहले. 3 महीने में 1000 रुपए आए. हाँ तो वो होता है. तो वो सीन थोड़ा है वैसा YouTube का. इसलिए. तो मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट जैसे रहूंगा. लाइक आई हैव ट्राइड टू एनालाइज योर चैनल एज वेल. सो मेरा क्वेश्चंस भी सॉर्ट ऑफ उसी में है कि अच्छा ये दिक्कत चल रही है मेरे ख्याल से. तो द टाइप ऑफ वीडियोस यू मेक, इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ क्राउड, राइट? आपका टारगेट मार्केट इतना ज्यादा नहीं है. Of course it does not. There's a small target, so which is also evident with the views and all that. So what is the long term goal for the channel? As you mentioned, थोड़ा वो funnel वाला आपने पिछले में ही बता दिया, but थोड़ा उसमें और deep down जाना चाहोगे? No, so I mean ये goal बहुत obvious है यार. मैं सिर्फ एक टाइप की वीडियोस नहीं बनाता हूँ. I mean, I've been experimenting with my channel ever since I started making videos. I used to make video essays. Then I just used to talk about TV shows and movies. Then I started doing opinions on news and trending events. Right now, I'm trying to do a mix of everything. These days, I'm experimenting with podcasts as well. So the gist is कि जो मेरे को बनाने में मजा आएगा मैं वो बनाऊंगा. And to be very honest, I don't care about the views वाला numbers, because ये मैंने देख लिया कि जितना तुम consistent रहोगे उतने views बढ़ते रहेंगे. For instance, my channel was doing really well this year in February, March and April. I was cashing in 1.5 million views a month and 15-20 subscribers बढ़ रहे थे. But then across May, June, July, August and September, I put out like 20 videos collectively. हाँ, तो मैंने 20 वीडियोस डाले हैं 4 महीने में या 5 महीने में, तो obviously views drop होंगे. And in October of 2020, I put out like 15 videos. तो मेरा जो ग्राफ ऐसे जा रहा था, ये मेरे को पता था जिस टाइम मैंने कंसिस्टेंसी बढ़ा दी ग्राफ ऊपर जाएगा.
And exactly that happened. My views are up like 70-80%. My revenue is up 100%. My watch time is up to 100%. तो वो तो consistency का game है. तुम जितना content डालोगे, if the audience likes it, तो वो तो आ ही जाएगा. तो I don't think there's a lack of an audience. YouTube पे हर चीज के लिए audience है. And the strategy is to experiment with the type of content that I'm making. For example, I love making video essays, but I can't put out a video essay every second day. So I'll take time to make a video essay, and जो जनता मेरी video essay देखने के लिए, which is my peak content. Video essay is a very, मतलब basically it's essay लिखते थे स्कूल में, edited really well. अच्छा. How do I put it? So basically it's a very, it's a. कोई वीडियो बता दो, कौन सा वीडियो से था? I mean, I've made a lot of video essays. For example, my About That YouTuber series is more like a video essay. अच्छा, okay. So, I mean, my What Went Wrong series are all video essays. So काफी anything analytical. that is not face cam, yes, anything that is not face cam but highly edited, has a lot of research done, that you can put out as a video essay. And तो वो बहुत rarely बन सकता है, उसके लिए हफ्ते लग जाते हैं. तो वो content कम आएगा, but जब वो आएगा तो वो बहुत अच्छा होगा, and the audience will stay for that content, regardless of whether that audience is like 5,000, 10,000, 15,000, that audience will stay. नहीं तो मासी audience लाने के लिए मैं टीवी शोज, मूवीज का रिव्यू कर रहा हूँ, ट्रेंड्स के ऊपर बात कर ही रहा हूँ, तो ऑडियंस वहां से आ जाएगा. उसका मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं है, ऑडियंस तो आ ही जाएगा यार. ऑडियंस है हर चीज के लिए. You just have to keep making the best content that you can. Right. So in the main channel, you don't have any video which has crossed 1 million, right? 1 million views अभी तक के कोई वीडियो ने क्रॉस नहीं किया है. हो जाएंगे, 3 वीडियोस हैं तन्मय भट्ट वाला, पोटेंशियली नहीं, the question is कि वो हो जाएंगी. Does this play on your mind? Like आपने इतने सारे जो डाइवर्सिफाई किया आपने into the podcast, into the gaming productivity, उसके पीछे रीजन क्या है? So something that I have learned like very early. Early. So revenue also is not an issue. Revenue I can. So this is which is what I meant. YouTube is not my primary source of income, right? So revenue doesn't matter to me. जो भी आ रहा है वो मेरे लिए ऊपर का ही है, तो मेरे को नुकसान नहीं है उस चीज में. Now something that I figured out really early in my YouTube journey was the fact कि per video views don't matter. What matters is कि तुम्हारे channel पे overall कितने views आ रहे हैं. 100%. So for example, right now, over the last 4 months, मेरे channel पे दिन के 10,000 views आ रहे थे. So 10,000 views every day consistently is a big number. Because that means even if you're not uploading a video, you're getting 300,000 views a month. बिल्कुल. Right? And that my goal now is to get that up from 10,000 to 50,000 views a day. जिसका मतलब मेरे महीने के 1.5 million views आ जाएंगे, जिसका मतलब है कि मेरे महीने के 40 से 50,000 रुपए ऐसे ही आ जाएंगे YouTube से, AdSense से. बिल्कुल. So that should be the goal for any creator कि तुम्हारी per video views तो आ ही सकते हैं यार. You do YouTube for 5 years, you'll become big enough कि तुम्हारी per video views आने लगेंगे. But the trick is कि consistently तुम daily कितने views pull कर सकते हो अपने channel पे. Because that is how YouTube knows ना कि लोग रोज आ रहे हैं इसके channel पे to see something or the other, and that means you have to make a lot of videos. So at the moment I have like 150 videos on the channel that are public. But I also have around 300 videos that have unlisted, 300 private से ज्यादा होंगी. हाँ, private भी हैं, unlisted भी हैं. For example, I've reviewed like more than 100-200 shows यार. अब सारे shows का तो audience नहीं है ना, but मेरे को aesthetic reasons की वजह से उनको हटाना पड़ जाता है channel से, कि ऐसा अच्छा नहीं लगता कि 1 लाख views अगली वीडियो में 2,000 views हैं, अगली वीडियो में 5,000 views है, फिर से 1 लाख views है, तो वो अच्छा नहीं लगता है. But someone who goes to the playlist on my channel, someone who's really interested in TV shows, will be able to find it. उसको unlisted में मिल जाएगा वो. तो वो सीन होता है. So it's all about figuring out कि तुम दिन के 50,000 views कैसे ला सकते हो. अगर तुमने वो figure out कर लिया कि तुम्हारे दिन के इतने views आ रहे हैं, regardless of whether you make 1 video a month or you make 1 video every day, my benchmark is दिन के 50,000 views जिस दिन मेरे आ जाएंगे, उस दिन my YouTube will become stable. अभी वो मेरे ख्याल से see 15 video डाले मैंने अक्टूबर के. I think I have wait, let me just check. 25-30 हजार तो पहुंच गया था. From putting out like 15 videos, 20 videos in a month, in 5 months, to 15 videos in 1 month. रुक जा मैं तेरे को देख के बताता हूँ exactly कितना है. हाँ. So it's up to like 35,000 views a day. क्या बात कर रहे हो? Is what is काफी जल्दी हो गया. Yeah. हाँ, so that is the consistency. मतलब जल्दी नहीं हुआ है. Like only in the last 2 weeks has it gone up from like 10,000 to. वीडियो ज़्यादा डाला है, consistency फिर बढ़ गई है. हाँ, कंसिस्टेंसी ज्यादा बढ़ गई है. प्लस आई बीन डूइंग लाइव स्ट्रीम्स एज वेल, तो वो भी काउंट होता है. प्लस मैं कुछ वीडियो हटाता रहता हूँ, व्यूज ऊपर नीचे भी हो जाते हैं. बट ओवरऑल दिस हैज बीन डूइंग रियली वेल फॉर मी. फॉर एग्जांपल ऑन माय सोशल ब्लेड इट सेज कि मेरे चैनल पे 5 लाख व्यूज आए लास्ट मंथ, बट दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज़ आई रिमूव्ड अ लॉट ऑफ वीडियोज एज वेल.
कि वो पुराने वीडियोस थे वो 10-15 हजार व्यूज वाले, तो वो कम भी हो जाते हैं. So my channel went from 300,000 views in September to almost 1 million views in October. Wow. तो वो consistency से ही 300%. हुआ है. तो which is तो वो गेम है कि दिन के 50,000 व्यूज जिस दिन कंसिस्टेंटली आने लगे उस दिन YouTube स्टेबल है. ये आपके लिए कौन से मार्क के बाद आता है? मतलब कंसिस्टेंसी मेरे लिए भी है 300 व्यूज पे, मेरे को हर 2 दिन पे 300 व्यूज मिलता है, मेरा कंसिस्टेंट है, मैं भी नोटिस कर यार रहा हूँ. ग्राफ देख, व्यूज का ग्राफ ऐसे जाता है, पहले तुम्हारा ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर तुम एक लेवल अप हो गए, लाइक यू क्लाइंब स्टेयर्स, राइट? योर एनालिटिक्स आल्सो लेवल अप. सो अभी ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे पहुंच जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर वो एक और बार ऐसे पहुंच जाएगा. सो इट्स लाइक अ स्टेयरकेस. एंड अंटिल अनलेस तुम बहुत ही बेवकूफी नहीं करते हो, तुम स्टेयरकेस से नीचे नहीं उतरोगे, तुम्हारा स्टेयरकेस ऊपर ही जाता जाएगा. लाइक यू डोंट बिकम लाइक मी एंड स्टॉप अपलोडिंग, राइट? तो एक महीने में तुम 15 वीडियोस डाल रहे हो, अगले 4 महीने में तुमने टोटल 20 वीडियोस डाली हैं. नहीं, आप तो ट्रैवल YouTube भी will of कर course penalize you ना. आपका. हाँ, वो मतलब reasons can be whatever, but YouTube the algorithm doesn't understand this, right? Yeah. So that is what it is. Correct. वो कंसल्टेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली, लाइक नॉट डायरेक्टली बट इट वाज दैट कि डोंट यू थिंक लाइक यू विल बी ग्रेट फिट इन सम कंटेंट सुपरवाइजर रोल जैसा कंसल्टेंट, जैसा आपने खुद ही बोल दिया आपने, बट क्वेश्चन भी था फॉर कंपनीज लाइक नेटफ्लिक्स, टीवीएफ, प्राइम, ऑल दीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स. So I mean ultimate goal to मेरा, I mean the like when I'm 40 or 45, that would be the goal. You get into a good company that is doing really well and you supervise a content strategy role. But that is something that I've done in the past. So for 2.5 years, I was strategizing. I was managing marketing, design, content for a startup, for a fintech startup in Gurgaon. I've done that for 2.5 years. I need a break, which is why I went to do my masters. एंड वहां पे जाके यूट्यूब चल गया. सो आई एम लाइक कि ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं. बट दैट इज समथिंग आई एम डूइंग ऑन द साइड एज वेल. तो अल्टीमेट गोल वही है कि या तो मैं स्टार्टअप्स को, बहुत सारे स्टार्टअप्स को एडवाइस करूं, बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, बिकॉज वहां पे जरा वो होता है, मजा ज्यादा आता है काम करने में, बिकॉज रिसोर्सेज कम है, रिजल्ट ज्यादा आते हैं, तो वो अलग होता है. बट ऑफ कोर्स इफ आई रीच अ स्टेज इन माय लाइफ वेयर, नहीं फंडेड में मजा नहीं है यार. फंडेड में कंप्लेसेंसी आ जाती है. फंडेड में कंप्लेसेंसी आ जाती है जब पता है ना कि तुम पे महीने के 50,000 का बजट है और तुमको इतना टारगेट मीट करना है, तो तुम दिमाग लगाओगे, तुम अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखोगे, तुम ऑर्गेनिक कंटेंट डेवलप करोगे. दैट इज वेयर माय जेस्ट फॉर डूइंग एवरीथिंग ऑर्गेनिकली कम्स इन. क्योंकि मेरे पे बजट नहीं होता था मार्केटिंग का. मेरे पे महीने का 10,000 रुपए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एड चलाने का बजट होता था. उसमें मेरे को ऐप डाउनलोड्स लेके आने, तो उसमें क्या क्रिएटिविटी करूं मैं. दैट इज व्हेन आई हैव टू स्ट्राइव टू क्रिएट गुड आर्टिकल्स. फॉर एग्जांपल, आई रोट एन आर्टिकल 2.5 years ago on पता नहीं कुछ लिखा था मैंने म्यूचुअल फंड पे, बहुत सारे लिखे थे, बट दिस वन आर्टिकल फॉर दैट 1.5 year वाज द सोर्स फॉर 50% ऑफ आवर ट्रैफिक. एसईओ. वो इतनी अच्छी सक्सेस है मेरे लिए. या एंड आई हैड नो क्लू अबाउट एसईओ. मैं तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के आया था, मेरे को थोड़ी पता है एसईओ क्या होता है. so that is the kind of experience that I have got with the startup world. And yeah, to answer your question, I think I will make a good fit, but I'm just not there yet. It'll take me another few years to get myself in a place where I can confidently go out to say Netflix कि लाओ जाओ नौकरी दो. रिक्वेस्ट नहीं आ रही अभी? रिक्वेस्ट तो आ रही होगी आई थिंक यार. Like I am not looking for jobs per se. नहीं, जॉब्स नहीं, कंसल्टेंसी या उस टाइप का ही. हाँ, तो that I'm doing, but not specifically in a supervisor role, but like basic strategy के लिए. Like I'm working with a couple of fintech startups अभी भी. I'm working with the team that I was working with पहले. I am trying to consult a couple of people who are venturing into edtech. I was consulting a food brand अभी recently. So yeah, तो request आते हैं and I'm also helping whenever I get time. But मेरा focus अभी primarily, like I'm trying to split my time between creating my content and helping other startups. So I'm not taking any new projects. Whatever I have, whatever people I know, I'm trying to work with them. Correct. So creative process is something I want to know. This I asked to Devaya also. Devaya Bopana, if you know, AIB का ex writer, अभी क्रेडिट कार्ड लिखे थे, उन्होंने बहुत सही समझाया. तो आपका एनालिटिकल ब्रेन कैसे क्रिएटिव प्रोसेस चलता है? आप जैसे आपने अभी सेजल पे वीडियो बनाया था या तन्मय पे वीडियो बनाया था, AIB का जो व्हाट द फक वेंट रॉन्ग विद तन्मय, AIB वो भी बहुत सही वीडियो था. तो व्हाट वाज द क्रिएटिव प्रोसेस लाइक इन द ब्रेकिंग एनालिसिस का ब्रेकअप थोड़ा बताओ, कैसे करते हो आप? So this is something that I don't know. Maybe I've been lucky with this. Vibe based है कि observation based है? Vibe, मेरे को लगता है आपको vibe भी बहुत सही आता है. Yeah, exactly. So this is something that has been the case with me like ever since. So like when I was in 3rd grade, I used to love writing essays. And मेरे को हमेशा से लिखने का बड़ा शौक है. So when you are into writing and when you know focus on something, तो तुमको, मेरे को लिखने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है मेरे को.
अच्छा. तो in the initial days I used to like write 1500 word के script and then make my videos. At this point it has become so casual कि मैं बस कैमरा ले जाकर रिकॉर्ड कर सकता हूँ. I don't even need to write a bullet point list. I have everything sorted दिमाग में and फिर मैं उसको टिक मार्क करते हुए चला जाता हूँ and then it's just record. So I mean I think that can come from the fact कि I have literally made over 1000 videos in my life, including my own content, मेरे स्टार्टअप का कंटेंट और बहुत सारी जो मैंने कंसल्टेंट करी है उनका कंटेंट. तो एक बार जब तुम 1000 वीडियोस बना लेते हो तो तुमको पता चल जाता है कि स्क्रिप्ट में होना क्या चाहिए. एंड द एडिटिंग आल्सो गोज राइट इन माय हेड बिकॉज आई एम एडिटिंग माय ओन वीडियोस इन मोस्ट केसेस. तो मेरे को पता अच्छा. चल जाता है कि मैं ये बोलूंगा तो इस पे क्या चीज आएगी. तो हम्म. आई थिंक इट्स जस्ट प्रैक्टिस एंड थोड़ा कैजुअल कैजुअल नहीं, मतलब थोड़ा बचपन से सीखा हुआ नहीं, आप ऑब्जर्वेशन थोड़ा का एक्सेप्शन स्किल्स. निकल गए फिर इस सेंस में, क्योंकि मोस्टली लोग इतना वो Maybe, I नहीं mean, I'm है. saying maybe I'm just lucky यार. Maybe I'm just lucky. Maybe भगवान ने मेरे को बना के भेजा हो कि तू अच्छा लिख सकता है तो चलो तू अच्छा बोल भी ले. तो maybe it's practice. I mean, 1000 videos is a lot of videos to बहुत है. reach at a stage where you can just sit in front नाच of a डेली हो camera and आप. speak. हाँ. हाँ, नाज दिल्ली ज्यादा बनाई है. I met him as well. हाँ, उसने भी यार वैसे एक्चुअली काफी इंस्पायर किया था. Like I हम met him in 2017 विथ and जय I एंड had a ऑल. chat with या him या about या. his process. Yeah, I had a chat with him about his process, and he was like कि मेरे को रोज एक वीडियो बनाना है. I don't care what happens. I have to make a video. मैंने कहा ठीक है यार, ये भी ठीक है, ऐसे भी करके देख लेते हैं. I'm So when I have to actually, make a video, I just yeah, build points. I'm actually helping his girlfriend dear Aline with her marketing as well. Aline, yeah. हाँ, उनकी टीम के साथ भी चल रहा है. सही है वो. राइट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज बैक टू यूट्यूब. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग कि यार सैचुरेट हो गया है, सैचुरेट हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत हो गया. YouTube. या व्हाट इज I योर don't agree लाइक. to that. नहीं, व्लॉगिंग में हम देख रहे हैं गौरव तनेजा, निखिल है, उनके व्यूज आते हैं और इतने लाखों लोग हैं, उनका कुछ नहीं होता है. गेमिंग में भी वही चल रहा है अभी. 2-3 आउटलायर छोड़ दो, उसके बाद कुछ नहीं है. कॉमेडी में तन्मय हो गया, 2-3 लोग हैं, एंड देन देयर इज लिटरली नथिंग. सो व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन? My personal opinion is that क्योंकि लोग वो करना चाह रहे हैं जो और लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, इसीलिए उनके व्यूज नहीं आ रहे हैं. लाइक अगर मेरे को पता है कि मेरे को अगर गेमिंग और कॉमेडी देखना है तो मैं तन्मय भट्ट पे जाऊंगा. मैं किसी रैंडम नए स्ट्रीमर पे क्यों जाऊंगा? अगर मेरे को पता है कि मेरे को व्लॉगिंग देखनी है तो मैं फ्लाइंग बीच पे जाऊंगा, या फिर मैं बाहर के किसी यूट्यूबर पे जाऊंगा. मैं किसी नए इंसान को क्यों देखूंगा? मुझे क्या इंटरेस्ट है उसकी लाइफ में, या किसी को भी क्यों इंटरेस्ट आएगा उसकी लाइफ में. सिमिलरली अगर मेरे को एक मूवी रिव्यू जानना है, लाइक पर्सनली आई वुड नॉट गो टू my videos because मेरे को तो पता ही, I would go to a Tried and Refused production का video because I know he does it well. If you're not making content that you thoroughly enjoy, why will other people enjoy making it, watching it? हाँ, if you're not enjoying making it, if you're doing it just for the fact कि चलो ठीक है, मिथपैड भी गेम में कॉमेडी लाता है, मैं भी मिथपैड की तरह करने की कोशिश करता हूँ, तो it won't work, right? It will never work if you're trying to imitate someone or if you're trying to replicate what they have done. Like a lot of people I see in the Indian YouTube space initially tried to replicate people what they were doing in the West or in the English बहुत speaking होता है. market, US and UK. तो वो अभी भी हो रहा है. Carrie Minati started replicating Leafy. He was the करेक्ट. outlier and उसका content चल गया, but बियर 1,000 बाइसेप्स भी lakhs of सब people start, मोस्टली. yeah, lakhs of people started imitating Carrie. तो वो नहीं चलेगा ना obviously. या मैं तुम कुछ ऐसा बनाओ तो either you find a gap in the market. For example, when I started making video essays, no one in India was making video essays. Now everyone wants to make video essays. तो मैं उससे move on कर गया हूँ. If nobody was doing video reviews, movie reviews in a casual manner, तो अब वो लोग कर रहे हैं तो मैं उससे आगे बढ़ गया हूँ. No one is doing analytical videos in the YouTube scene abhi with the frequency that I am doing. So that is an advantage that I have over myself. मतलब I have over them. तो वही सीन है यार, तुमको पता होना चाहिए कि तुमको या तो either you need to have an analytical eye जहाँ पे तुमको पता है कि यहाँ पे गैप है मार्केट में, वहाँ पे मैं फिट इन कर सकता हूँ. And you have to be able to find that gap consistently. Or which is the easier thing to do, you need to just love what you're making. And have realistic expectations यार. तुम अगर YouTube आज शुरू कर रहे हो तो तुमको 1 महीने के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं मिलने वाले हैं. तुमको 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी. उसके बाद तुमको कंसिस्टेंटली लोग नोटिस करेंगे. So if you're trying to imitate someone, it won't work. If you're making something that you don't like, it won't work. If you're coming here just for quick fame, it won't work. If you're coming here just for quick money, it won't work. तो सिंपल सी बात है, ये 4-5 फैक्ट्स एक्सेप्ट कर लो. एंड सैचुरेशन तो नहीं है. आई डोंट एग्री विद द सैचुरेशन फैक्ट, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी कह सकते थे आपने सैचुरेशन आ गया है, मूवी रिव्यू क्यों देखेगा कोई. 18 में किया था ना? नो, आई थिंक आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस 2018 मार्च. यस, 2018. In my first year, I had 2,000 subscribers. फर्स्ट ईयर ऑफ Yeah, डीयू. YouTube.
नहीं, अच्छा, फर्स्ट ईयर 18। डूइंग यूट्यूब अच्छा प्रॉपर्ली। अच्छा, समझ तो गया। फरवरी मार्च 2018 से दिसंबर 2018 में मेरे 2,500 सब्सक्राइबर हुए थे। दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 तक 25,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे। ओह। एंड हाँ। दिसंबर 2019 से अब पता नहीं जितने भी होंगे। बट अगेन द पॉइंट इज कि आई वाज कंसिस्टेंटली पोस्टिंग वीडियोस, हफ्ते में 1 या 2 या 3 वीडियोस में डाल रहा था। एंड आई हम्म। वाज पुटिंग एन एफर्ट, आई लाइक व्हाट आई वाज मेकिंग। तो सिंपल से वही 4-5 रूल है। तुम अगर इन 4-5 चीजों के लिए आ रहे हो, फेम, मनी, सक्सेस रेप्लिकेट करना, या फिर तुमको बहुत सारे नंबर्स चाहिए, देन इट वोंट वर्क। यू हैव टू एब्सोल्युटली लव व्हाट यू आर मेकिंग, तभी या चलेगा। करेक्ट करेक्ट। Alright, still in the YouTube game only. YouTube में what do you think in the next 5 years will happen? Like we have seen that काफी maturity हो गया है YouTube India में, काफी creators हैं अब. तो what type of creators do you think will be there in 2025 और 2030? किस टाइप का content बनेगा? ब्लॉग ही चलता रहेगा या कुछ नया आएगा? क्या लगता है आपको? यार जो चल रहा है वो तो अभी चलेगा, एटलीस्ट फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, व्हाटएवर इज वर्किंग। This the unique thing about the Indian YouTube space and the Indian internet space is that a lot of people, मतलब जितने लोग USA में इंटरनेट नहीं चलाते होंगे उससे ज्यादा लोग हमारे इंटरनेट पे भी आए नहीं है। तो there is huge potential. That is the reason I say कि market is not saturated, because अभी इतने सारे लोग हैं जो YouTube नहीं 500,000 चलाते हैं वाले। यार। No, there are 500 million people that are not on the internet. हाँ हाँ, There correct. are India में YouTube के मेरे ख्याल से 300 या 250 million users हैं. That means out of the 600 million people that are on the internet are not using YouTube, but they're using Android phones and they will eventually make it to YouTube. And then तुम पे एक इतना abundance audience है जो अभी है, उससे double audience है जो potential है तुम पे। तो कुछ भी पसंद आ सकता है यार उनको। लोगों को टिकटॉक पे कुछ भी पसंद आता है, लोगों को इंस्टाग्राम पे कुछ भी पसंद आता है, लोगों को किसी भी चीज पे कुछ भी पसंद आ सकता है। यू जस्ट हैव टू बी देयर। अगर तुम हो ही नहीं वहां पे तो देयर आर जीरो चांसेस कि लोग तुमको पसंद करेंगे। एंड देन यू कैन बी मेकिंग व्हाटएवर यू लाइक। सी दिस इज एग्जैक्टली वेयर दिस फिट्स इन, कि तुम्हें जो बना रहे हो वो अच्छा लगना चाहिए। तो अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो सामने वाला इंसान, इफ दे शेयर योर इंटरेस्ट, देन दे विल डेफिनेटली लाइक इट. If they don't share your interest but they see that this person has enthusiasm making the content that they make, then of course they will feel it ना। वो वाइब वाली बात है। तुम अच्छा कुछ बनाओगे, सामने वाले इंसान को अच्छा लगेगा। तो True. I think in the foreseeable future, people who work on personality based content is going to boom really well. This is something that we have started to see recently, in the sense that sketch comedy is going to die down. Oh. Vlogs are going to, I mean, decline, but there's a new genre in India that has not been explored yet, which Flying Beast is trying to do, which is family vlogging. That is going to boom really soon, Yeah. because में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा potential है. Educational content is of course going to boom. We've seen a lot of it coming. Like proper educational content, ये नहीं कि motivation वाला कि तुम जीवन में ये करो वो करो, but proper educational content, that is going to boom. Beer biceps type. I think not even Beer Biceps type, something like an Aman Dattarwal type, or Got it. I don't remember the name of this chap, but he teaches coding really well. थोड़ा I think academic, Yadesh something. थोड़ा academic Yeah. point. Actual academic educational content is going to boom, and anyone who goes into the infotainment scene, उसके पास बहुत potential है. So there your Beer Biceps might fit in. There my channel might fit in as well, because you're providing entertainment to a certain extent, but you're also providing a lot of information. Like we've seen Abhi and New boom really well this time. Crazy. So that Crazy. is because their editing is fun, their scripting is nice, their content is educational, but it's छोटा also भी. entertaining. Exactly, it's bite-sized content. No, I mean I don't agree to the fact कि bite-sized content is more easily consumed, because मेरे को लगता था, but जब तक मैंने देखा है कि लोग मेरे podcast पूरे 1.5 घंटे देख रहे हैं, तो there is an audience that wants to watch long-form conversations as well. तो हर चीज के लिए ऑडियंस है। जो बना रहे हो दिल से बनाओ, लोग देख लेंगे आके, और लंबे समय तक बनाओ। That is what I will say. Got it. राइट, सो मास्टर्स आपने किंग्स कॉलेज से करी है. मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने मास्टर्स, मैंने एक वीडियो देखा था आई थिंक, उसमें आपने बोला था कि मैंने सिर्फ मास्टर्स इसलिए करी है बिकॉज डीयू में नॉर्थ कैंपस नहीं मिला था, तो किंग्स कॉलेज या कोई टॉप अब्रॉड कॉलेज से करना है. आई रिलेट टू इट. That is not how I would put it. So मेरे ना, like I was in ISC. This is 2014. तब 100% ही कट ऑफ आई थिंक जाती थी. So I scored 92%. And I wanted to do literature बहुत dedicatedly. And इसीलिए मैंने करा literature, because मेरे को जिस कॉलेज में literature मिला मैं उसमें घुस गया. And this north versus south वाला debate was relevant in my mind तब, क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त नॉर्थ कैंपस चले गए. And then I realized कि because
So it was not because मेरे को North Campus नहीं मिला. It's because I chose course over college. So 92% पे I could have gone to North Campus and got a normal course, कोई हाँ BA program में कर वो तो सकता था. फिर But that is something that I did not want to do. yeah And true. because then I chose course over college, and for my master's I wanted to choose college. Priority Over college course. को थी. तो luckily course मेरे को वो मिल गया जिसमें मेरे को interest था, and I had practical experience in that field. Yeah. तो वो benefit मतलब वो lucky हो गया मेरे लिए. तो हाँ, reason यही था कि because I chose course over college first, I was like कि जो अगली पढ़ाई करनी है उसमें college ऊपर रख के देखते हैं. And Right. luckily it worked out. King से तो हो गया. इसका सवाल मेरा ये था कि पहले तो डिजिटल ह्यूमैनिटीज है क्या, मतलब उसमें पढ़ाते क्या हैं, एंड सेकेंडली यू थिंक लाइक इट पेड ऑफ लाइक इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम किंग्स कॉलेज, एंड इज दैट हेल्पिंग यू इन यूट्यूब एज वेल, that is related to the course So curriculum? to be very fair, any degree you don't realize how it will pay off like at least 10 years into the future. I see. तुम अपनी डिग्री की वैल्यू अभी नहीं निकाल सकते because once you have gained that knowledge, you need time to utilize it, right? You need time to expand on that experience that you've gotten. The problem is कि because COVID हो गया, my last 6 months in Kings were a total waste. तो मैं कुछ कर नहीं पाया वहाँ पे. I could not communicate. I ये could 12 not months go का to था attend कि 24 classes. months का था? 12 months. So mine is a 1 year's course. तो मेरे 6 महीने तो लिटरली वेस्ट गए ना. मैं कहीं बाहर नहीं जा पाया, मैं किसी से मिल नहीं पाया, could not network, could not do anything. तो I mean that is वो तो मेरे साथ अकेले के साथ नहीं हुआ है. A lot of people have had it much worse. So I can't complain there. Now digital humanities is a field that is going to be really relevant in the next 10 years. Which is why I say I'll have to wait for 10 years to figure out if my degree was worth it or not. And the reasoning behind going for this degree is that our lives are going to become more digital as we go on. हम अपने लाइफ से डिजिटल को कम कर ही नहीं सकते. There's no way it is happening. No chance. True. Like even if you want to live a digital free life, तुमको तब भी फोन चाहिए. तुम navigation use करोगे. Why would you want to make your life harder जब तुमको पता है कि तुम पे easy tools हैं. Now since we have like agreed on the fact that life is going to become digital, there has to be a humanitarian angle to it. There has to be a management angle to it. There has to be an analytical angle to it. There has to be an ethical angle to it. And that is exactly what this degree was about. So I had a lot of modules. A lot of modules were about big data. I had modules about management for companies. I had modules about management of digital assets. For example, right now we are dealing with like 4 digital assets. एक मेरी stream है, एक तेरा stream है, एक मेरा audio, एक तेरा audio, फिर हम Zoom से ही बात कर रहे हैं. So literally everything in our life is an asset, is a digital asset. Yeah. And किसी पे expertise होनी चाहिए ना उसको संभालने की. True. So that is exactly what my major is. So it's digital assets and media management specialization under the digital humanities banner. So in like 10 years when everything becomes relevant, this degree, everything becomes digital, this degree is going to become only more relevant in the future to come. So that is the rationale behind it. In terms of the first 6 months, जो network आपका बना होगा, how was that? Like, how was the experience of that network in the initial 6 months? यार to be very fair, पहले 6 महीने मैंने जाके सिर्फ चिल करा है, पार्टी करी है, घूमा हूँ मैं, और मैंने YouTube करा है. My plan was that first semester I'll chill. First semester I'll enjoy the London life, and then over the next semester I will connect with people, because that is eventually when जब सब लोग मूड में आ जाते हैं कि चलो अब नेटवर्किंग करते हैं. पहले 3 महीने में तो नए नए लोग आए होते हैं, थोड़ा रिलैक्स होते हैं, सेटल होने में टाइम लगता है. तो I mean that is how it went. मैंने I started focusing on my YouTube dedicatedly only when I moved to London, and in the first 3-4 months I think जब मैं गया था सितंबर में, तब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे. बिकॉज मुझे याद है मेरी 13th की फ्लाइट थी एंड 10th को मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे. तो सितंबर के बाद दिसंबर में 25,000 हो गए. तो आई पुश्ड रियली हार्ड ऑन माय यूट्यूब ड्यूरिंग दोस फर्स्ट 3 months. बट कॉलेज भी था, सो आई डू हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस ओवर देयर. I know a lot of people from King's College London. I know a lot of people, my colleagues, my fellow students, my friends over there. So connections हैं. The only problem is that because of COVID, I can't make use of those connections. Like there's really nothing I can get out of them. So that is where the disadvantage is. But then उसका मैंने use ये कर लिया कि I made a lot of connections in the Indian space. अब Indian digital media space, YouTube is by far the biggest and most influential social media market that there is. And I utilized it by making a lot of connections over here. So I don't think ऐसा कुछ waste किया. पढ़ाई तो मैंने करी ना, dissertation तो मैंने लिखी है ना 15,000 word की. तो पढ़ तो मैं लिया, practical experience मैंने यहाँ ले लिया. तो I mean that is how I like to look at it. बाकी 10 साल में पता चल जाएगा कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ.
सही है, कर पैसे बहुत सारे खर्च हुए, उनको रिकवर करना है बस। हाँ मैंने देखा था वो कोई वीडियो में था कि 35 लाख लग गए हैं, ऐड से ही आ जाएगा। हाँ, याद है 35 मुझे। लग गए और क्या। हाँ तो यही सीन है। Right. So for someone who wants to enter the content skit space और like TVF वाला जो space है, TVF में जो फिल्ड कॉपी, क्या नाम है उसका, हम्म। फिल्टर कॉपी, राइट, फिल्टर कॉपी TVF, उसमें जिसको घुसना है, what I think would be the perfect roadmap, like roadmap उनके लिए from मैं आपको भी देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है माई कि अब वो नेटफ्लिक्स में वो टॉप जॉब घुसने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका जो आपने पकड़ रखा है। अब सब तो वो शुरू नहीं कर सकते यूट्यूब, तो उनके लिए व्हाट डू यू थिंक इज द परफेक्ट सी रोड दिस इज समथिंग आई रियलाइज जब नेटफ्लिक्स ने मेरी वीडियो पे कमेंट करा, तो मेरे को मैप? लगा अच्छा ठीक है, ये भी तरीका हो सकता है। लाइक उनके किसी ऊपर को एक नहीं वीडियो बना छोड़ेंगे। दो और देखेंगे, देखेंगे ही वो। सी दिस इज समथिंग दैट आई रियलाइज व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दैट अबाउट दैट यूट्यूबर सीरीज। Yeah. सो आई डिड दैट बिकॉज़ मेरे को एनालाइज करने में मजा आता है, मेरे को वीडियो बनाने में मजा आता है। आई रियलाइज कि अच्छा ठीक है, इनसे तो ऐसे तो ये इन पे पहुंच जाएगा। एंड सो द वीडियोज दैट आई मेक आर नॉट लाइक फ्लैटरिंग वीडियोज। True. आई डोंट से कि यार तन्मय भट्ट तो बहुत बढ़िया यूट्यूबर है, उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। True. आई क्रिटिसाइज देम, I bring out the flaws that I see, and फैजल, मैं more तुझे often than पता है not, तुम the देख रहे people. हो। That was Exactly. I know epic. Sejal has watched that video, but I mean, sometimes people Yeah. don't respond. Like Ashish Chanchlani, I made a video on him, Yeah, I did. and I saw that comment. Yeah. he took it really well. So before he commented, I sent him that video. उससे पहले. So I had a full budget conversation with him about that video, and he was like, "यार तूने मेरे को जो मैं personally सोचता हूँ, I was amazed कि someone from the outside world can think on it." Yeah. And Yeah. that is Yeah. how I Yeah. connected with him. So that is an advantage that I have thoda sa analytical mind, and I can think on it. And if someone wants to get into the sketch comedy space or sketch space, I don't think that is going to be relevant in the next 2 years, 3 years, because TVF has started to die down. Because जब ये चीज शुरू हुई थी ना, 2014-15 में, in fact in 2012, nobody was making web series यार. Nobody was focusing on the web space. आज की तारीख में सब सिर्फ वेब सीरीज ही देख रहे हैं, सब सिर्फ वेब पे अपनी डिजिटल मूवीज रिलीज करने वाले हैं, स्पेशली इन कोविड टाइम्स. सो देयर इज अ लॉट मोर कंपटीशन हियर. कंपटीशन नॉट जस्ट फ्रॉम स्मॉल हाउसेस लाइक और बेसिकली यूट्यूब हाउसेस, प्रोडक्शन हाउसेस, TVF और उसके साथ कंपटीशन फ्रॉम लाइक बिग प्रोडक्शन हाउसेस. मूवीज रिलीज हो रही हैं वेब पे, हर Yeah. OTT प्लेटफॉर्म अपने खुद के शोज बना रहा है. So if someone wants to start doing it, I don't think it's the right strategy. You can't just go out and make sketches, because content idea saturate हो चुके हैं यहाँ पे. Either you have to come up with a really big budget, really big names wala series, or you have to come up with a really interesting idea. And in the digital space where attention spans are low, where you have to have good marketing, where there's such high competition, going into the sketch comedy space with the intent of making videos, making sketch videos is not the right way. I mean, you can go and figure out, तुम writing में जा सकते हो, ऑलरेडी जो काम चल रहा है तुम वहाँ पे connections ढूंढ सकते हो. But my advice would be sketch space, at least in the YouTube and TVF space, is not that relevant anymore. Because TVF ने shows बनाना बंद कर दिया YouTube पे. उन्होंने अभी बहुत टाइम बाद इंटर्न्स करके एक शो निकाला, वो भी 3 एपिसोड का है बस. वो ऐसा 3 एपिसोड इज चैनल है। नथिंग. या 3 एपिसोड इज नथिंग. उसमें भी उन्होंने अपने तीनों जो फीमेल लीड्स थे अलग शोज के, they had to combine all of them, and still the response is not as good 1 as million it views would have कुछ been आया। like 2 years ago. Yeah. So that is the point. This space is dying. People need good quality shows because there's already such an abundance. For example, I love what Filter Copy is doing. उन्होंने जो उनका Little Things है, they have made it a Netflix exclusive. बोलने वाला था मैं। हाँ। Exactly. So this is something that they have to do. कोटा Little Things फैक्ट्री का भी अच्छा premise था। इतना अच्छा है. कोटा फैक्ट्री भी अच्छा था. So that these kind of shows don't come every 2 months ना. These kind of shows have to take time. Actually साल 1.5 साल लग जाता है. तो कोटा फैक्ट्री का प्रोडक्शन मिर्जापुर प्रोडक्शन टाइप का था. साल लगा उनको, उनके आइडियाज अच्छे थे, उनका एग्जीक्यूशन अच्छा था. एंड यूट्यूब पे स्केच स्पेस इज नॉट दैट गुड, एंड इट्स वेरी सैचुरेटेड, बिकॉज एटलीस्ट 20 चैनल है ऐसे जो सिर्फ स्केच बना रहे हैं. उनको व्यूज भी आ रहे हैं, बट दैट ऑडियंस इज नॉट एन एंगेजिंग ऑडियंस. दे जस्ट कम फॉर द फन ऑफ इट, स्टे फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए दिमाग चलाओ चले जाओ. तो इफ यू वांट टू टाइम रियली पास गेट इनटू द ऑडियंस। स्पेस, या अगर तुमको एक्चुअली स्पेस में घुसना है तो go into the infotainment space. Entertainment space is really that is the space that would be really saturated. And अगर तुम I think that's a really saturated space. उससे तो कहीं और थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो कि और क्या आ सकता है, वहां जाके घुसो. For example, a lot of new individual creators which I see, which keep sending me their videos, and I love some of them. They make really good videos. They make really interesting videos. They make really well researched videos. तो वहां पता चल जाता है.
And I think the approach that any new individual coming into the content creation space should take is to focus on their own brand. कि अपनी थोड़ी औकात बनाओ, उसके बाद जाके और लोगों से बात करो. For example, समझ गया I mean, एक you स्टेज have पे to तुम have खुद a पहुंच certain जाओ, backing. उसके बाद ही तुम Exactly. एक करेक्ट स्टेज पे तुम खुद पहुंच जाओ, उसके बाद तुम और लोगों की नोटिस पे आने लगोगे. करेक्ट And करेक्ट that is how it works. That is how it worked for me. एक स्टेज पे हाँ खुद पहुंचो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी एक क्वालिटी बनाओ, थोड़ी अपनी एक औकात बनाओ, बेसिकली साफ सी ट्रू लफ्जों में कहूं तो. उसके बाद तुमको लोग ऑटोमेटिकली लेवरेज मान रहे हैं कि होना तुम्हारी चाहिए औकात होती कुछ. बन गई तो. हाँ, you need to have something to show to the potential bigger people or bigger नहीं, more influential people or people who have the power and control to give you थोड़ा exposure. तो अगर तुम अपनी या औकात तब तक नहीं बनाते तो कोई तुमको क्यों नोटिस करेगा? बिल्कुल बिल्कुल That ये is तो the है. gist of it. करेक्ट. डाइवर्टिंग टुवर्ड्स फाइनेंसेस, पैसा. हाउ इज Yeah. मनी कमिंग फॉर यू? ये सवाल था, आपने पहले ही बता दिया कि कंसल्टिंग करना था, बट कोई नहीं. अब थोड़ा यार डेप्थ में एंटरप्रेन्योरशिप कुछ में थैंक घुसना है आपको कि बस नहीं कंसल्टिंग? यार, नहीं, मैं लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ, उसमें मेरे को बड़ा मजा आता है. जो मेरी बात सुन ले, मैं उससे बहुत खुश हूँ. So money has, like, to be very honest, money, I never really have had to worry about money in my life. I mean, my dad is a government, मतलब he is retired now. तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको पैसों की ऐसी कुछ खास किल्लत हुई या फिर मेरे को कोई पैसों की जरूरत पड़ी हो इतनी. मुझे लगता है स्कूल में थे तो घर वाले देख लेते थे, घर वालों से पैसे ले लिए जाते थे. When I moved to college, I started doing internships right from my first semester. तो अपनी ऐश करने के लिए पैसा मैंने हमेशा खुद कमा लिया है. तो दैट बिल्ड अ हैबिट कि मेरे को पता है कि अगर मेरा इतना खर्चा है तो हैव टू वर्क इनफ कि मेरे पे इतने पैसे आ जाए. एंड वो हैबिट, लाइक यू कीप स्टेपिंग ऑन दी उसमें एनालिटिक्स वाले में, इफ यू कीप एट इट कंसिस्टेंटली तो तुम करते रह जा सकते हो. तो व्हेन आई वाज वर्किंग माय जॉब इन दी स्टार्टअप, आई वाज आल्सो डूइंग दिस कंसल्टेंसी थिंग साइड बाय साइड. तो जॉब का सैलरी आ रहा था एंड कंसल्टेंसी से जो एक्चुअल पैसा था वो आ रहा था. नाउ दैट जॉब हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यूट्यूब. तो वो यूट्यूब से जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है. बाकी जो यूट्यूब की स्पॉन्सरशिप आती है, जो बाकी काम होता ब्रांड है, डील्स तो है ही वो वो आता सब रहता तो. है. हाँ, I mean, it's not like I'm making like tens of lakhs rupees a month. इतना पैसा भी नहीं है मेरे पे. But it's enough कि मैं अपनी जरूरतें पूरी कर लूं and I can save आगे के लिए. तो that is how it works. Because I've never been a big spender यार. मेरे को कपड़े खरीदने का शौक नहीं है, मेरे को जूते खरीदने का शौक नहीं है, मेरे को गाड़ियां चलाने का शौक नहीं है. मेरा शौक है कि मेरे पे इतना अच्छा गियर हो जिसमें तीन मैं एप्पल फटाफट के काम कर लैपटॉप लूं. पकड़ रखे हैं, दो बड़े बड़े पीसी हैं, क्या हाँ. बात कर रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे पे गियर अच्छा होना चाहिए. हाँ मैं जो समझ रहा मेरे हूँ, को मैं ऐसे ही बोल रहा सी था. आई ऑनेस्टली बिलीव कि या तो तुम पैसा खर्च करके टाइम बचा सकते हो या तुम टाइम खर्च करके पैसा बचा सकते हो. तो वो बैलेंस मैंने स्ट्राइक कर लिया कि टाइम मेरे इज को मनी. पैसा वहां खर्च करना है जो मेरा टाइम बचा दे. मेरे को वहां पैसा खर्च करना है जो मेरा टाइम बचा दे. फॉर एग्जांपल, इफ आई नीड टू एडिट, आई विल नॉट बी एबल टू एडिट ऑन माय ओल्डर लैपटॉप. सो आई नीड अ न्यू लैपटॉप जिसमें पुराने में मेरे को अगर 4 घंटे लगते थे तो मेरे को 1 घंटा लगे. तो मेरे जो 3 घंटे बचे उसमें आई कैन मेक अप फॉर इट. फॉर एग्जांपल, आई बॉट माय मैकबुक प्रो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, है ना. हाँ, आई जस्ट ग्रेजुएटेड एंड आई टुक अ लोन ऑफ 2 lakhs फ्रॉम माय डैड कि मेरे को लैपटॉप चाहिए, मेरा एयर अब पुराना हो गया है, मेरे को लैपटॉप चाहिए ही चाहिए. एंड पापा वाज लाइक ठीक है. मैं तो कह रहा था कि पर्सनल लोन दिलवा दो मेरे को, ग्रेजुएट तो हो ही गया हूँ मैं, नौकरी लगी गई है, मैं बैंक से ले लेता हूँ पैसा. तो उन्होंने मेरे को समझाया कि बेटा फिनटेक में काम कर रहा है तू ही देगा लोन, 25% महीने का ना, तो छोड़ दे. नहीं. तो मैंने कहा आप ही दे दो मेरे को, मैं आपको हर मंथ वापस कर दूंगा. एंड माई गोल देन फॉर द नेक्स्ट वट एवर मंथ्स बिकेम कि मेरे को 2 लाख रुपए उतारने हैं. तो मेरे पे मोटिवेशन था कि अगर मेरी सैलरी महीने की 50-60 हजार रुपए आ रही है तो उसमें मेरे को किराया भी देना है, मेरे को सेविंग भी करनी है, तो मेरे को ऊपर इतना कमा लेना है लैपटॉप को यूज करके ही कि पापा के पैसे चुका दूं. एंड देन लकीली कुछ 8-10 महीने में मैंने पापा के पैसे वापस कर दिए. तो उसके बाद लैपटॉप ने अपनी कॉस्ट तो निकाल ली एंड देन इट मेड मोर. तो मेरी लैपटॉप की वर्थ तो बहुत ज्यादा निकल चुकी है. तो दैट इज हाउ आई लाइक टू थिंक. पैसा वहां खर्च करो जहां तुम उसको मल्टीप्लाई कर पाओ. लाइक दिस इज एन एसेट टू मी. तो वही है. गुड एडवाइस फॉर मी बिकॉज़ आई एम आल्सो प्लानिंग टू बाय अ MSI लैपटॉप. अब मैं भी एक्सपेंसिव वाला लूंगा. बट फिर मोटिवेशन लाना पड़ेगा कि उसकी कॉस्ट निकालनी है, वापस निकालने हैं पैसे. निकाल लेंगे, कोई नहीं. राइट. हाँ बस फिर ठीक सो है. ये है, क्या सवाल था आपने भूल गया. राइट. सो डू यू थिंक व्यूज वाले सीन में मैं अभी थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जा रहा हूँ. लाइक आई सी तन्मय भट्ट and I see his videos going 2-3 million in one day. I see गौरव तनेजा एक दिन में 3-4 मिलियन हो जा रहा है. तो क्या ये तन्मय भट्ट जैसा ही अब मैं कॉमेडी और मिक्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स करने लगूं, या गौरव तनेजा से क्या है ये?
करूं this क्या? is something that I'm really sad that people don't understand things. Understand this. This is very basic. कि हाँ. एक होता है रूल और होते हैं फिर एक्सेप्शंस टू द रूल. सो द टॉप 20 यूट्यूबर्स दैट यू सी आर द एक्सेप्शंस टू द रूल. या तो उनकी टाइमिंग अच्छी थी, या फिर उनके पास पहले से एक ब्रांड इमेज था, जो वो एक एक्सेप्शन बने हुए हैं. तन्मय भट्ट, द रीजन ही इज वर्किंग इज बिकॉज ही ऑलरेडी हैड अ नेम फॉर वर्किंग आफ्टर 8 years इन द इंडस्ट्री. Yeah. तो अब जब वो अपना कंटेंट लेके आया, ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग टू वॉच हिम. Hmm. Carrie Minati had a first mover advantage. Ashish, Bhuvan, they First had a mover. first mover advantage. तो Hmm. उन पे वो एडवांटेज था जिसको वो अब कैश इन कर रहे हैं. True. द रूल फॉर यूट्यूब और बेसिकली इन लाइफ कि देयर आर वेरी लिटिल चांसेस कि तुम वो लकी इंसान बन जाओगे जिसका सब बूम हो जाएगा. Hmm. मान के यही चलो कि तुम्हारे पे कोई लक नहीं है, तुम्हारा लक एकदम गया हुआ है, तुमको मेहनत करनी ही पड़ेगी. और तुम रेप्लिकेट करोगे तो तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होगी. You have to innovate, you have to experiment, you have to be Yeah. consistent. You can't just look at तन्मय भट्ट की तन्मय भट्ट के तो महीने में 2 million व्यूज आ रहा है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ. वैसे नहीं चलने वाला है तुम्हारा काम. There are exceptions. These guys are exceptions to the rule. But these guys also had to work for years before they became exceptions to the rule. अगर Flying Beast के गेमिंग चैनल पे एक दिन में 1 million आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि Flying Beast के आ रहे हो. Flying Beast ने उससे पहले 2 चैनल 1-1, 2-2 million पहुंचाए हैं, इसीलिए आ रहे हैं वो. Yeah. उसने 350-400 दिन तक रोज व्लॉग करा है. उसने पायलट की जॉब करी है, वो आईटी से पढ़ा हुआ इंसान है, उसके पास दिमाग है, तो उसने उस दिमाग का प्रयोग करा है, तब जाके वो स्टेज पे पहुंचा है. तन्मय इज अ रियली क्रिएटिव पर्सन. ही नोज कि उसको कंटेंट में कितनी मेहनत डालनी है, कंसिस्टेंसी कैसे ऊपर रखनी है. दैट इज व्हाई ही इज रीच्ड देयर. आशीष और भुवन को पता है कि उनके स्केच अगर आएंगे तो उनको भी क्वालिटी में कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ नया डालना पड़ेगा ताकि लोग देखें. तो इफ यू ट्राई टू जस्ट लुक एट दी पीपल एट द टॉप, तो तुमको नहीं पता चलेगा. इफ यू रियली वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, लुक एट द पीपल हु आर बियॉन्ड द टॉप 50. 50 से 100 वालों को जब तुम देखोगे, जब तुम रियलाइज करोगे अच्छा ये हफ्ते में 2 वीडियोस डाल रहे हैं, ये इन टॉपिक से वीडियोस डाल रहे हैं, ये यहाँ से रिसर्च करते हैं, ये इन लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, इनकी स्ट्रैटेजी ये है, ये एक टाइम जब कंटेंट डालते हैं तो ये इंस्टाग्राम पे भी अलग कंटेंट डाल रहे हैं, ट्विटर पे भी अलग डाल रहे हैं, इनका कंटेंट रीपर्पसिंग कैसा होता है. व्हेन यू लुक एट दोस थिंग्स, देन यू विल एक्चुअली रियलाइज कि काम क्या करता है. अगर तुम तन्मय भट्ट की वीडियोस देखते रहोगे और तुमसे जाके पबजी खेलोगे, तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है. एंड मोस्ट पीपल विल नॉट अग्री टू दिस, मोस्ट बिकॉज ये मुश्किल है ना, ये करना मुश्किल है एक्चुअली. यू हैव टू पुट इन टाइम, यू हैव टू पुट इन एफर्ट, यू नीड टू हैव पेशेंस. तो स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है. अच्छा कंटेंट बनाओ जो तुम्हें अच्छा लगे, मेहनत करो, एंड तुम्हारे को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. बट मेहनत करना नहीं चाहते लोग. दैट इज द सैड थिंग. करेक्ट. राइट. नहीं, काफी सही. ऑलराइट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, ये मेरे को बहुत देर से खा रहा है, लाइक बहुत देर टाइम से खा रहा है कि व्हाई आर देयर नो ग्लोबल इंडियन यूट्यूबर्स. एज इन अली अब्दाल एक है बंदा जो ग्लोबल है, राइट? उसको बट ही इज आल्सो अ यूके बेस्ड पर्सन. हाँ, बट हाँ एग्जैक्टली यूके का है, बट इंडिया में लोग देखते हैं ग्लोबल. एक इन वन सेंस इट्स ही इज ग्लोबल. इंडिया में ऐसा कोई नहीं है. लिली सिंह इंडियन ओरिजिन की जरूर है, बट वो कनाडा की है, यूएस में चल गई है, ग्लोबल है. सो इंडिया में क्यों नहीं है? इन दैट सेंस सी इट्स अ लैंग्वेज सीन. It's because of Hindi. English is a global language, so that is why there's an English audience. बट हमारा भी तो इंग्लिश चैनल है इतने सारे यूट्यूब में. कहाँ है? कौन है? बियर बाइसेप्स There's ले लो. none. बियर बाइसेप्स इंग्लिश. But Beer Biceps is a rip off. मतलब Beer Biceps, I don't want to call him rip off क्योंकि उसने अपनी मेहनत भी करी है. But his channel started because he was watching Alpha M. तो Alpha M से काफी सिमिलर है उसका चैनल. So Alpha M अगर कोई बाहर का ऑडियंस देख रखा हो, Beer Biceps क्यों आएगा? Right. Ali Abdal is also popular in the UK. The guy called Mr. Who's the Boss, Arun, is also a UK-based Indian origin YouTuber. तो ये लोग पॉपुलर हैं. ऐसे तो स्पेनिश इतने सारे यूट्यूबर हैं जिनके 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, हमको नहीं पता है. प्लस सी आई डोंट थिंक वी नीड टू हैव ग्लोबल यूट्यूबर्स. जितना यूट्यूबर ग्लोबल ऑडियंस नहीं है, उससे ज्यादा लोग हमारे पास हैं पोटेंशियली. एंड अभी और ऐसे भी तो हम पे यहाँ पे इतना ऑडियंस है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता यार बाहर से लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे. यहाँ पे मार्केटिंग, यहाँ पे यूट्यूब एड. So CPM is not the way YouTubers in India earn money, right? They earn through brand deals, and they earn substantially through brand deals after reaching a certain stage. ये तो है. CPM प्लस हमारे यार CPM को ये भी देखो ना, हम पे लोग ही इतने हैं कि अगर मिस्टर बीस की वीडियो पे एक दिन में 10 मिलियन व्यूज आते हैं, ठीक है, एक दिन में नहीं आते, एक दिन में 2-3 मिलियन व्यूज आते हैं. कैरी मिनाती के 1 घंटे में 1 मिलियन लाइक्स होते हैं. तो उस हिसाब से देखो ना, तो किससे फर्क पड़ रहा है कि इन बाहर का ग्लोबल जानते नहीं जानते. एंगेजमेंट के मामले में तो इंडिया नंबर 1 है ना यूट्यूब के लिए. यूट्यूब को तो पैसा मिल रहा है ना एड से.
वो समझो। प्लस इंडियन ऑडियंस बाहर के यूट्यूबर्स के लिए कितनी वैल्यूएबल है। लू फ्रॉम अनबॉक्स थेरेपी, मुझे लग रहा है उस आज की तारीख में उसकी 15% या 15 भी नहीं, 50-60% ऑडियंस इंडियन है। वो अपने ल्यू लेटर वाले चैनल पे इंडिया के रिलेटेड ही क्लिप्स डालता है, वही सबसे ज्यादा व्यूज लेके आती हैं उसके लिए। Similarly for MKBHD, these tech people have a huge Indian audience. Vloggers have a huge Indian audience. तो ऑडियंस की वैल्यू है, एंड ऑडियंस सबसे ज्यादा हमारे पास है, सबसे ज्यादा देखने वाले लोग हमारे पास हैं। तो इफ वी कीप गेटिंग सैड ऑन द फैक्ट कि इन ग्लोबल यूट्यूबर नहीं है हम पे, तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे इतने लोग हैं, उनको केटर करो ना। तुमको क्यों चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस? अगर तुमको इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस चाहिए तो तुमको कंटेंट इंग्लिश में ही बनाना पड़ेगा। इंग्लिश में कंटेंट बनाना अगेन इज डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू compete with already established brands, you have to compete with already established creators. तो वहाँ कंपटीशन ज्यादा है, ऑफ कोर्स ज्यादा है। यहाँ पे तुमको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे लोग इतने ज्यादा हिंदी बोलने वाले। दिस इज जस्ट व्हाट इट इज, इट्स हार्श बट दिस इज व्हाट इट इज। एकदम इंग्लिश बोल के ग्लोबल बन के कुछ फायदा भी नहीं है। YouTube मिनी कोर्स हो गया, ये पॉडकास्ट का टाइटल होगा मिनी कोर्स ऑन YouTube एनालिटिक्स। कर सकते हो, ऐसे मान सकते हो। Last. Like I started a English only channel because initially my channel used to be English अच्छा। only. I used to make, जो मेरा मेन चैनल है उस पे इंग्लिश में वीडियोस डालता था मैं बस। एंड तो देन माय इंग्लिश है। रेवेन्यू वाज क्रेजी गुड। माय रेवेन्यू वाज क्रेजी गुड। अच्छा। लाइक 10,000 व्यूज। लाइक मैंने विजय माल्या पे एक वीडियो बनाया था, वो पूरा इंग्लिश में है। दैट वीडियो हैड लाइक 50,000 व्यूज एंड इट अर्न 10,000 रुपीज। दैट इज क्रेजी रेवेन्यू। तब तक मेरे को लगता था ठीक है इंडिया में सभी इतने कमा रहे होंगे। फिर मैंने हिंदी वीडियो बनाना शुरू किया, मुझे पता चला अरे यहाँ तो लाख व्यूज पे भी 100-500 रुपए नहीं बनते। मैंने कहा इससे तो इंग्लिश ही अच्छा था। सो आई मेड अनदर चैनल। दिस इज सो माय यू एंड रस्टी चैनल व्हिच इज अबाउट बुक्स दैट आई रीड। बेसिकली अली अब्दाल को रिप ऑफ कर रहा हूँ मैं। थोड़ा धीरे फ्रीक्वेंसी है मेरी, पर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में कोई बना नहीं रहा है, यहीं के ऑडियंस को टारगेट करूंगा मैं। तो दैट इज द प्लान। इंग्लिश में अगर रेवेन्यू चाहिए मेरे को, तुमको कंटेंट बनाना पड़ेगा, वहां मेहनत पड़ेगी, बट वो मेहनत बहुत मतलब करना मुश्किल है। सो फार आई बीन एबल टू मेक लाइक 10 वीडियोस, बट मेरा प्लान है कि मैं उसको कंटिन्यू करूंगा आगे। तो वो सीन है, इंग्लिश में मेहनत करनी पड़ेगी अगर ग्लोबल ऑडियंस चाहिए, हायर सीपीएम चाहिए तो। Right. Final question, common question across podcasts. 3 books, podcasts, and life lessons you would want to share. 3 बुक्स, पॉडकास्ट एंड लाइफ लेसन्स। यार मेरी फेवरेट किताबें ना वो है जो तुमको बहुत बोरिंग लगेंगी पढ़ने को, बिकॉज दे आर ऑल नॉवेल्स। दे आर लाइक 700-800 पेजेस की नॉवेल्स। तो आई डोंट नो इफ यू इवन लर्न समथिंग फ्रॉम देम और नॉट, बट मेरे को तो ऐसी कहानियां पढ़नी पसंद है। आई डोंट रीड अ लॉट ऑफ नॉन फिक्शन, आई लव रीडिंग सेल्फ हेल्प में बता दो। फॉर एग्जांपल Atomic Habits, सेल्फ हेल्प Deep पढ़ी नहीं ना, Work. पढ़ता नहीं ना मैं, पढ़ता ही नहीं हूँ मैं। मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं मतलब जरूरत नहीं पड़ी, कभी इंटरेस्ट ही नहीं आया। सो आई लव रीडिंग नॉवेल्स फॉर एग्जांपल। अरे इसलिए तो मैं लिटरेचर करा यार। हाँ मैं समझ गया था सारे तुम्हें। शेक्सपियर के प्लेस मैंने बहुत शिद्दत से पढ़ रखे हैं। सारे मैंने शेक्सपियर की प्ले में एक्ट किया है और नॉवेल्स में पढ़ता रहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल देयर इज दिस बुक दैट आई एब्सोल्युटली लव, इट्स कॉल्ड लुकिंग फॉर अलास्का। इट्स अ जॉन ग्रीन नॉवेल, वन ऑफ द फर्स्ट वंस दैट ही रोट, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल जॉन ग्रीन स्टोरी। वो फॉल्ट क्या इन आवर था स्टार्स वाला। करेक्ट, समझ गया। बट उससे पुरानी नॉवल है वो। सो दैट्स देयर। क्राइम एंड पनिशमेंट इज अ ब्यूटीफुल नॉवल। वो तुम पढ़ नहीं पाओगे, 700-800 पेज की किताब है वो। उस किताब में कुछ नहीं होता। उस किताब में वो ऑथर पर्दे को डिस्क्राइब करता रहता है 4 पेज तक। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट अ लॉट ऑफ नॉर्मल पीपल बी इंटरेस्टेड इन। तो आई मीन अगर मेरे को एडवाइस देनी हुई, आई लाइक शताब की बुक काफी अच्छी है। द रूडिस्ट बुक एवर इज अ गुड बुक इफ यू वांट टू रीड। So it's a good book. That is something I would recommend. What else would I recommend? There's a book called I'm forgetting the name. The Art of Body Language. ऐसी कुछ नाम है उस किताब का। रुक, let me just check. I think I have it on my Art of Not Giving a Fuck. No. It is called The Definitive Book of Body Language. Is something that everyone should read. Okay. Because it teaches you a lot about why people do what they do. Subconsciously लोग क्या सिग्नल देते हैं। ये काफी अच्छी किताब है, मेरे को डिबेटिंग में बहुत हेल्प किया है इसने। हाँ तो ये 2 किताबें हैं। पॉडकास्ट तो मैं कहूंगा मेरा पॉडकास्ट सुनो, सच है तुम्हें पॉडकास्ट नहीं मिलेगा दुनिया में। स्टोरीज इज द बेस्ट पॉडकास्ट, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा लेजर पॉडकास्ट है, बढ़िया कन्वर्सेशन हम कर देते हैं। आई डोंट लिसन टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट। आई लिसन टू नो आई डोंट लिसन टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई नहीं। I sometimes listen to there's this podcast called The Great Indian Ghotala or The Great Indian Scam. It talks about financial scams in India. तो वो मैं कभी-कभी सुन लेता हूँ। What was the other thing? Life lessons. 3 life lessons. क्या दूंगा? Life lesson. 3 शब्द हैं, वही ध्यान रख लो। Consistency, patience and perseverance. ये 3 शब्द चाहिए जीवन में।
3 लाइफ लेसन ही हैं अपने आप में। कंसिस्टेंट रहो, संयम से काम लो और मेहनत करते रहो, यही है लाइफ लेसन। दिस समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज, मतलब नॉट ऑलवेज बट इन माय लास्ट 6 years ये मैंने रियलाइज किया है कि यही चीज है तुमको थोड़ी सेटिस्फैक्शन देती रहती है अंदर से। एंड सेटिस्फैक्शन है जब तक तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है काम करने का। Correct. All right, बहुत guys. सिंपल बेसिक सी That was Vedant Kaushik for you. I have listed down his 5 YouTube channels, 1 Instagram handle, 1 LinkedIn profile जो मुझे बहुत मुश्किल से मिली, and yes, 1 Twitter handle. Total 8 links है. LinkedIn यूज नहीं, हाँ मैंने यूज नहीं करता यार मैं। अरे ईमेल आईडी ढूंढ रहा था तो देखी थी। तो जाओ फॉलो करो। No, but thank you. No, I had a lot of fun. This was a good conversation.